सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भाषण प्रतियोगिता जो नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही है, यह प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। इसी क्रम में हमारे साथ अतिथि के रूप में श्री शैलेश तिवारी जी हैं, जो जर्नलिस्ट और समाज सेवी हैं। इनका भी हम इसी क्रम में श्रीमती पूजा खनूजा जी, जो बाल कल्याण समिति जिला सीहोर और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की खंडपीठ में मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर हैं। इनका भी हम पूजा करते हैं। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथिजनों का स्वागत करेंगे। आदरणीय राहुल वर्मा सर से निवेदन है कि वे शैलेश महापुरुषों का आह्वान करते हैं। जब देशभक्ति की बात आती है तो हम वीरों की गाथा गाते हैं, झांसी की रानी को याद करते हैं, महापुरुषों का आह्वान करते हैं। और आज हम फंस गए हैं चकाचौंध भरी दुनिया में, अक्सर एक दूसरे पर दोष प्रचार करते हैं। आज हम फंस गए हैं चकाचौंध भरी दुनिया में, अक्सर एक दूसरे पर दोष प्रचार करते हैं, पर भूलिए मत जनाब, कर्तव्य हम सबके हुआ करते हैं, हम सबके हुआ करते हैं। A very good afternoon to respected judges, teachers and all my dear friends. This is Anushka Rai standing here to express my view on one of the beautiful topic of the day, that is patriotism and nation building that will ensure the prosperity and inclusive growth of this nation. Don't ask what nation has done for you. Ask yourself what you have done for the nation. Now, what is patriotism? Allow me to express my feeling in 4 lines. Patriotism is not about your rights, but about your duties. It's not just about your emotions, but about your actions. It's not just sacrificing your life for the nation, but it also includes your sincerity, your loyalty towards the nation. And at last, it's not only about your love for the motherland, but it also includes the love for the people belonging to this motherland. Now, if I'm talking about the patriotism and nation building, then I have several examples which shows that how the patriotism has helped to change the face of the nation. Be it example of American Revolution, be it example of French Revolution, that how the people through their effort, through their dedication, helped to change the face of their nation. Now, if I put certain Indian example, when I was reading medieval history and modern history, I realized that one of the reasons behind the destruction of the Mughal Empire, which was so prosperous and so strong, it was the lack of patriotism and lack of oneness among the people. But when I see the modern history, freedom struggle of India, I realized that though it was a strong, it was a long 200-year struggle, it was a sacrifice of several leaders like Bhagat Singh and Mangal Pandey, but if I am standing here and speaking in front of you, it is because of their patriotism, it is because of their oneness. We are standing here and enjoying our lives. Now, if I talk about the nation building, allow me to quote what Dr. Kalam said. He said, he was once asked, "Sir, how can I contribute to the nation building?" He said, "If you are doing your duty with utmost sincerity and honesty, you are the real contributor to the nation building." It is a fact, my dear friends, we are not required to take very big initiative to develop a nation, but a small contribution of each and every individual that help us to change the face of this nation. I am here. देश की चांदी मिट्टी का हरदम गुणगान करती हूँ। मुझे आशा नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे आशा नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा कफन रहे मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। जय हिंद। मैं योजना चौरसिया आज के विषय में अपनी बात रखना चाहूंगी। देशभक्ति को लेकर, जो कि हम सब जानते ही हैं, आजादी के आज हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आजादी के समय हमारे कई वीरों ने बलिदान दिए हैं, और जैसे कि आजादी तब कुछ और थी, आज कुछ और है। आज हमारे विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि आज हमें हमारे देश को बेरोजगारी, भूख
काम हो जाए, चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के नाम हो जाए। जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। नमस्कार आदरणीय विनायकगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के विषय देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। व्यक्ति एक राष्ट्र जीवन में माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है, और जिस संस्कृति से हम सब ने जन्म लिया है वह है भारतीयता, और जिस पावन धरा पर हम सब ने जन्म लिया है वह है भारतवर्ष। भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर सिर्फ तिरंगे के साथ फोटो खिंचवा लेना या राष्ट्रगान के सम्मान में बावन से खड़े हो जाना ही देशभक्ति नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से देशभक्ति या महोदय राष्ट्रवाद से उठकर जो भाव मन में आता है वह है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जो समर्पण की भावना हमारे मन में आती है वह है देशभक्ति। एक शिक्षक का शिक्षा देना, किसान का अन्न उगाना, सफाई कर्मी का सफाई करना, वो हर ईमानदारी से किया गया कार्य है देशभक्ति। हम अधिकारों से पहले जब कर्तव्य निष्ठा की भावना मन में लाएंगे तो वो है देशभक्ति। आजादी के पूर्व और आजादी के पश्चात देशभक्ति के मायने बदल चुके हैं मौजूद। ये भूमि पहले ही लाखों बलिदानियों के खून से सिंचित की जा चुकी है। इसे आप सड़क पर बहते हुए खून की आवश्यकता नहीं है, इसे आवश्यकता है हर नागरिक के नसों में उबलते हुए खून की। इसे आवश्यकता है एक ऐसी नई मौत की जिसका एक एक फूल, एक एक फल देश के लिए अर्पित हो। यही संकल्पना और कल्पना करना है देशभक्ति। To all our present here, I am Disha Tyagi. Today, in this very Paris festival of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the country is going to our great freedom fighters and brave heroes who ended their lives and sacrificed day and night in the defense of the country. The country is going to all the freedom fighters. This is called real patriotism. Patriotism is the love for the nation, and to the extent with which you can sacrifice your life for the betterment of the country. Patriotism is not a feeling to show only on Republic Day and Independence Day. And it is not only about posting on social media. This is not a true feeling of patriotism. Patriotism, the true patriotism is shown by doctors, nurses, paramedical staff, sanitation staff. जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। अमीर सारे व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, अमीर सारे व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, और देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विकास के निरंतर धारा में बहने के लिए भारत का बस एक दृश्य दिखाने आई हूँ। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नेहा त्यागी आज आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आजादी। आजादी का मतलब सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने गुलामी देखी हो। हम सभी बहुत लकी हैं कि हमने एक आजाद भारत में सांस ली है। वैसे तो आजादी की 1857 में लग चुकी थी, लेकिन उसे मशाल के रूप में आग 1947 में मिली, तब हम आजाद हुए। अगर मैं आजादी की शुरुआत से बात करूं तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत I believe in Constitution not because I am Indian. I am Indian because I believe in Constitution. One flag, one land, and one heart, and one nation evermore. With this positive thought and quote, I, Benedict John from the heart of India, wish you all with lots of greetings of love, joy and peace. Especially to you all the judges, dignitaries and guests. Hope you all are fine and having a wonderful time here. Let me tell you something of my past. I was not at all aware of such competition. And one day, I was scrolling my YouTube page and I came across this Nehru Yuva Kendra Sangathan, which every year organizes this declamation competition. And when I saw the topic, patriotism and nation building, so I decided to take part in it. But there were a few things which I needed first to be clarified, so that obviously I can clarify for others. So I asked myself two very important questions. First, what is patriotism? Is dying for the country alone patriotism? No. Is it
just by becoming politician and serving the country alone patriotism? No. Is it just by becoming more aware on Independence Day and Republic Day and putting the status in every social media, hashtag proud to be Indian patriotism? No. Then what actually patriotism is? And I realized patriotism is all about loving others and doing one's responsibility sincerely. Loving others includes two things, dear friends. Loving our motherland and loving ourselves first. When we love ourselves, that means we will not compare ourselves with others. We will not become the carbon copy of others. With these two things will happen. The suicide rate in India will come down. And second, when we really love others now, we will not cheat others. We will not do fraud with others. We will not be corrupted by others. And as a whole, by doing our responsibility sincerely, we are becoming a good patriot. If you are a teacher, then be a good teacher. Teach with all your heart and soul. If you are a doctor, then be a good doctor. If you are a politician, then be a good politician. And this is how the process of nation building takes place. And with this, I remember my second question of the day. What is nation building? Is nation something concrete? Can we build by bricks and cement? No. Is nation something visible or invisible? If visible, then where is the nation? And how can we build it? Confusing, right? Let me share with you one incident that happened with me. One day I was teaching in 4th class, and the chapter was about India and its culture. And in that chapter we talked about Madhya Pradesh and its culture, Gujarat and its culture, Rajasthan and its culture, and likewise other states. One child stood up and asked, "Excuse me, sir, we're supposed to study India and its culture, but why are we studying Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan's culture?" This question may seem to be very stupid to you all, but this is very valid question. What is India? India alone is not a place. India is the combination of blocks, villages, districts, cities and so on. But very often we and the government forget this and we focus on developing few parts of the country. And with this, we cannot build a proper nation. If there is no continuous development, then there is a problem. And if there is a problem, there is a solution. And the solution is not somewhere outside, it is within us. So dear friends, I have come here with 3 suggestions, 3 points. Point number 1, we all need to begin to meditate and contemplate on our life. We have forgotten to ponder on our life that the things that we do is good or not. In the past, there were many people who used to philosophize things like Jiddu Krishnamurti, Ramanuja, Gandhi, and people from different countries used to flock to India for its peaceful nature. So my request to everyone is, we need to begin to meditate at least for 5 to 10 minutes. With this, one thing is sure to happen. Our conscience will be awake. Whenever we do something wrong, our conscience will remind us that we have done something wrong. And with this, we will do at least some improvement in our life. And point number 2, we need the continuous development of each and every part of places and person. By the very word development, I just do not focus on the infrastructure, but I do mean the basic needs for people: food, clothes, shelter, education, health sector, electricity and internet. Because nowadays the connectivity is also something important. This may seem to be a very impossible task, but this is possible when we all are together. I remember the words of Dr. APJ Abdul Kalam. Do not try to become handsome, but give your hand to some. Dear friends, my third point is, we need to be first of all Indian, then to be Hindus, Muslims, Sikhs and Christians. The pathetic and synthetic condition and the problem of India is, we have divided ourselves into many parts on the basis of caste, color, religion, status and so on. I do not mean to say that we should have one religion.
Because this is not what our constitution demands. Our constitution says, for India is a sovereign and secular country. That means every religion is good. Every religion teaches about good things. Every religion teaches to be a good human. What I mean to say, stop fighting on the basis of religion, because more than religion, we have a nation to serve. And dear friends, whenever we are parts, we are weak. Anybody can come and destroy us. Just like the example, if you see a stray dog, you can pick up the stone, you can throw that stone at this dog, and you can chase the dog away. But do you dare to throw a stone at the beehive? Obviously no. The beehives are together. If you do so, the consequence is that they will chase you. So dear friends, I just want to say only one thing, that united we stand. And one more thing I want to add, united we not only stand, but we survive, we prosper and we thrive. And I end up my speech with a beautiful shairi. अर्थ क्या है? ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो वतन के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, जियो धर्म जियो वतन के नाम पर, मरो वतन के नाम पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। रानी मुझे इनाम चाहिए, बिना स्वार्थ के देश की सेवा कर सकूं, बस आप सभी का योगदान चाहिए। उठा कदम देश है काल का, काल की मां भारती, उठा कदम बड़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा। उठेगा देशवासियों, तू चल पड़ेगी मां भारती, उठा कदम बड़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा। और राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण ये एक दूसरे के समान है। देशभक्ति जहाँ हम करेंगे वही हमारा राष्ट्र का निर्माण है, और जहाँ राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं वही हमारी देशभक्ति। राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति क्या है? देशभक्ति क्या है? क्या हम हमारे स्टेटस पे देशभक्ति का कोई संगीत लगाकर देशभक्ति कर रहे हैं, या फिर कोई सा भी मैसेज आया कि इसे आगे पहुंचाओ, तभी अगर सच्चे देशभक्त हो तो इसे आगे पहुंचाओ? क्या यही देशभक्ति है? या फिर देशभक्ति ये है कि हम चल रहे हैं और कुछ पाउच पानी खाया और फेंक दिया, ये देशभक्ति है क्या? देशभक्ति हमारी ये नहीं है। देशभक्ति ये नहीं है कि हम हमारे देश का तो बड़ाई कर रहे हैं, बड़ा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के बारे में बुरा बोल रहे हैं। जननी मतलब माता और मातृभूमि से बढ़कर स्वर्ग भी नहीं होता। उसी देश के वासी और उसी देश के वासी में से एक मैं भारत की आवाज आज यहाँ नेशनल ब्रिटिश पेट्रियटिज्म टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ। तो सबसे पहले देशभक्ति क्या है? देशभक्ति वो नहीं जो हम पर थोपी जाए, या फिर देशभक्ति वो नहीं जो बचपन से हमको सिखाई जाए। देशभक्ति एक भाव है जो हमारे अंदर स्वतः ही उत्पन्न होता है। मैं समझती हूँ कि देशभक्ति वो नहीं है जो बच्चों को मार मार कर सिखाया जाए कि आज 15 अगस्त से तेरे को स्कूल जाना है। देशभक्ति वो नहीं है जो बच्चे को 26 जनवरी पे स्कूल जाने को मजबूर कर रहा है। अभी तो देशभक्ति वो है जब 9 बजे उठने वाला बच्चा 15 अगस्त को सुबह 6 बजे उठकर बोलता है कि मम्मी आज स्कूल जाना है। वैश्विक अंधकार को मिटाने का प्रकाश धारण किए यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों की मेरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम है। आज के विषय की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। न जाने क्यों ये शब्द सुनते मेरे भारत की पीठ पर पड़े गुलामी के जंजीरों के निशान खड़क में, न जाने क्यों इनसे लहू ठंडे लगते। शायद ये याद दिलाते हैं कि जिस समय हम एक नहीं, शायद ये याद दिलाते हैं कि हमें राष्ट्रता की भावना नहीं, शायद ये याद दिलाते हैं कि हम गुलाम बराबर वो 25 साल बाद सा भारत, हाँ वही भारत जो फैला रहा है उजाला, ज्ञान का, अध्यात्म का, आत्मीयता का, जहाँ पर नहीं है गरीबी, जहाँ पर नहीं है भूखमरी, जहाँ है तो केवल सुख, जहाँ है तो केवल पुण्य। इस कल्पना रूपी भारत को वास्तविकता की प्रस्तुति पर संचालित करने के लिए हमारे पास है 4 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यदि प्यारे बच्चों,
बड़ी सहज कुमारी हमारी इतना अच्छा आप नहीं करते जो विषय वस्तु उसको स्पष्ट किया आपने और कई चीजें तो आपने नहीं की जो हमको नहीं मालूम थी क्या इतनी मतलब आप लोगों ने इतनी स्टडी करके आए यहाँ पर कि कुछ चीजें तो ऐसी थी जो हमको ही मालूम थी क्या ये क्या बच्चा क्या कह रहा है नाम नहीं लूंगा मैं उसको तक इतनी नई नई चीजें प्राप्त हुई और सबसे बड़ी बात समझ में आई है वो है जो युवा के अंदर ज्वालामुखी होना चाहिए ना वो सब आपके अंदर है आपके लिए तालियां ये आने वाला भविष्य ये प्रथम श्रेणी का प्रोग्राम होया निर्णायक आप जो बात में कह रहा वो भाई साहब अगर तिवारी भी कहे तो बहन जी भी कहेंगे हमारे और आप भी कहेंगे जब जिला स्तर की प्रतियोगिता होगी उसमें देखना आप सब लोग आना उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा फिर मैं हमारे पंडित जी का भी आदेश पालन करता हूँ तो ये कई बार मंच देते हैं आपको डर लगता है कि क्या बिना मंच दिया नहीं दिया इसी तरह से कभी भी मन ये सकारात्मक सोच लगी थी मन पॉजिटिव थिंकिंग अगर जीवन पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सफलता का सूत्र यदि कोई है तो वह सकारात्मक आपको क्या सकारात्मक है तो आप जीतेगा वही मेरी पंक्तियों में लिखा है मैंने और मेरी पहचान की है नहीं है और विशेष रूप से जैसा मैंने आपकी तारीफ की ऐसी मुझे करता धोनी तारीफ मैंने सीखा मेरे लिए आप हमारे ठीक है कि सहज नहीं है जीवन इतना जितना तुमने जाना है और भाग्य में जिसके जो लिखा है उसको उतना पाना है पथ में कांटे लाख मिलेंगे धूल भरी इन राहों में प्रतीक के माध्यम से है ये समझ लो आप समझ आप मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है प्रतीक के माध्यम से गीत की रचना हुई है कि पथ में कांटे लाख मिलेंगे धूल भरी इन राहों में और चलना ही जीवन है राही मंजिल एक दिन पाना है चलना ही मंजिल एक दिन पाना है चित्रमय कार्य को सादर वंदन करते हुए जज के रूप में उपस्थित आई में अपनी यौवन अवस्था में आपको क्या कुछ कर गुजरना है इसके लिए आप केवल 4 चीजें आप ज्यादा नहीं मैं आपको कुछ यहाँ से जिंदगी के सूत्र देने का कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट कभी भी मैं हूँ तो पत्रकार लेकिन कभी कभी प्रवचन भी देता हूँ मोटिवेशनल स्पीच भी देता हूँ लेकिन उन सब में मेरा टारगेट हमेशा यूथ रहे मेरे विषय की वस्तु युवा रहे तो आज मैं उन्हीं युवाओं को 4 चीजें बताना चाहता हूँ जो हमारे ही बीच के किसी आदमी ने किसी अच्छे व्यक्तित्व में कही कि सबसे पहले तो युवाओं के पाँव में चक्कर होना चाहिए क्या होना चाहिए पाँव में चक्कर और मुझे देख के आज इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे सीहोर शहर में भी इतने कुछ प्रदर्शन करने वाले बच्चे आप सब लोग बधाई की बात है मतलब इतना कॉन्फिडेंस देख के और इतना जज्बा देख के देशभक्ति के लिए इतनी विचारों में स्पष्टता देख के मुझे आज बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और मैं ज़्यादा तो और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी लेकिन हाँ
राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर जितनी बात करो, जितनी चर्चा करो, जितना अपने विचारों का आदान प्रदान करो, समय उतना लगेगा और फिर भी लगेगा कि बहुत कम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार हम सब लोग लेकर चलते हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ आपके हैं, सब है। मेरे मन में जो बात आती रहती है, जैसे मुझे आजकल लगता है कि हमारे यहाँ पे जो लाइन्स ऑफ डिवीजन है, जिसमें लोग बंटने लगे हैं या टुकड़े होने लगे हैं, आजकल हम बहुत चर्चा सुनते हैं, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, चाहे समुदाय के ऊपर हो। तो बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात जो चल रही थी वो ये थी कि मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो ईद के बहाने शीर कोरमा भी बनाकर खाती हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो होली पर गुजिया देने जाती हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करती हूँ क्योंकि उसी दिन मेरा भी बर्थडे है, मैं वो व्यक्ति हूँ जो क्रिसमस पर बहुत चाव से केक बनाकर चर्च भी जाती हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो लोहड़ी पर बराबर जाकर लोगों के साथ उस आग में रेवड़ी डालती हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो बैसाखी पर अपने दोस्तों के साथ भांगड़ा भी करती हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो नवरात्रि पर व्रत तो नहीं करती हूँ लेकिन हाँ गरबा खेलने जरूर जाती हूँ, मैं वो भी व्यक्ति हूँ जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के विचारों को पढ़ती हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर धर्म के हर त्योहार के कुछ ना कुछ नियमों को मैं करती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं अपने धर्म से भटकी हुई हूँ या मैं किसी और धर्म को ज़्यादा सम्मान देना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे देश में पली हूँ जहाँ हर किलोमीटर पर वेशभूषा, भाषा और खाना बदलता है। मैं बहुत बड़ी खाऊ हूँ तो मुझे इसी बहाने अलग अलग जगहों के खाने को मिलता है। मैं भोपाल शहर में पैदा हुई और अपनी पूरी जिंदगी में ये मानकर चलती आई कि मेरे जो पिता है वो होशंगाबाद से थे। बहुत बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो जहाँ से वो तो सीहोर जिले में आता है। तो एक जगह जहाँ मैं इतनी ज़्यादा जागरूक हूँ, वहीं दूसरे हाथ पर मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। फिर जब मैं मुंबई शहर गई तो वहाँ पे गणपति फेस्टिवल में मैंने पूरी दुनिया की दवाई मैं वो व्यक्ति हूँ जो दिल्ली गई तो वहाँ के चाय समोसे पकौड़े भी खाए हैं, पंजाबियों के साथ मिलकर पनीर भी खाया है। तो इतना जब मेरे अंदर भिन्न भिन्न जगहों की भिन्न भिन्न चीज़ें हैं तो क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं? की ब्लॉग स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के रिजल्ट मैंने हाथ में है और इस भाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर